come here in front of you once more. This is the part 2 of active passive voice. In part 1 we have learned about the tenses, means present tense, past tense and future tense, how they will be converted into passive. First of all, I want to be thankful to you all. You gave too much appreciation, your blessings, your love, your support. Through your wishes, through your song, through your memories, through your pictures, through your audios, songs on the Teachers' Day. So thank you everyone, then I am grateful to you all. So let's start, and from this hope that you will remain with me like this for forever. So let's see the part 2 of active passive voice. Here are some other rules. Means if in the active tense there will be the different types of sentences, then how it will be converted into passive. See, here are written 1, 2nd, 3rd and the another type. So see here the first type, modal auxiliary plus B plus B3, means this is the structure of passive. अगर एक्टिव हमारे सेंटेंस में एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ मॉडल होता है, मॉडल को हम किस तरीके से चेंज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी क्या हुआ? हैज, हैव, विल हैव, नीड, मस्ट. हाँ, so if you are not knowing about the models, then you can go through my video or models. So if there will be in the active sentence models, then how we change them? Then see the example, it will be more clear to you. You must obey your parents. Must is modal. So here is modal auxiliary. Modal auxiliary के साथ हमको be लगाना है. V3 का हमारा must है, ही necessary है. तो इसका हमारा कैसे हो जाएगा? Your parents means object हमने ले लिया. Your parents must be obeyed. V3 will be there by you. हमने यहाँ agent by you लगाया. जैसा मैंने पहले भी कहा है कि there is no need to mention by you agent. हाँ, second, modal auxiliary plus have, be plus have. अगर हमारे किसी भी modal auxiliary के साथ have लगता है, shall have, will have, हाँ, अगर हमारा have लगता है तब हम have के साथ में been का यूज करते हैं passive बनाते समय. एग्जाम्पल देखिए, we shall have discussed this chapter. This chapter will have been. ये हमने पैसिव में सीखा था, फ्यूचर में भी, पार्ट 1 में भी, कि अगर हमारा ये कौन सा हमारा टेंस हो गया? will have, shall have, फ्यूचर परफेक्ट. अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी के साथ have आता है तब इसमें हम been यूज करते हैं. This chapter will have been discussed by us. यहाँ पर भी by us हमने लगाया है. अगर आपका मन है लगाने का तो लगाइए, otherwise no need to mention that as agent. थर्ड टाइप देखिए, किस तरीके से थर्ड टाइप हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है या मॉडल्स है? is, am, are, has, have, had, was, were. अगर इस तरीके के हेल्पिंग मॉडल्स वर्ब्स होते हैं उसके साथ टू लगाया हुआ होता है, टू के साथ हमको बी फॉर्म लगानी है पैसिव बनाते समय. जैसे दिस इज टू टेक, I am to take this. हाँ, अगर इस तरीके के सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में टू लगेगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. This is to be taken by me और this is to be taken. That's all. No need to put mention there. So see here also the example. He is to complete it. He हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, इसको हमने लिया he, it is helping verb to, then be हमारा रूल है, be लगाएंगे टू के बाद, then B3 completed. by him हमने इसमें नहीं लगाया है, हमने यहाँ agent का यूज नहीं किया है. So simple, he is to complete it means it is to be completed. to अगर हमारा helping verb के साथ होगा तो हमको be form यूज करने हैं. नेक्स्ट देखिएगा हमारा एक्टिव किस तरीके का होगा तब हमको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना है. एक्टिव देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव. अगर हमारा ये एक्टिव होता है तब हमको चेंज करने के लिए देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन
जो हमारा सब्जेक्ट है टू बी प्लस V3। देखिए देयर मैंने एक्टिव लिखा है यहाँ, वर्ब लगाया was, नाउन जो भी सब्जेक्ट है a lot of work, देन इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है? टू के साथ V1। हाँ, जब हम टू के साथ V1 लगाते हैं, इसको देखने के लिए सीखने के लिए इंफिनिटिव क्या है आप मेरे वर्ब फॉर्म्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख सकते हैं। इसका हमने कैसे बनाया? देयर, देयर एज लिखा जाएगा, was भी वैसे लिखा जाएगा, a lot of work भी ऐसे लिखा जाएगा, टू के बाद V3 लग गया B के साथ। मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन चेंज होगा, टू डू टू बी डन। मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। देयर इज नथिंग टू हैव, देयर इज नथिंग टू बी हैड। ओके, let's see the further rules about the voice. So here, if the sentence will start from it, verb, noun, infinitive plus object. if अगर एक्टिव में हमारे इस तरीके के सेंटेंस होंगे जिसमें इट से शुरू होके वर्ब फॉर्म लगकर नाउन, नाउन के बाद में अगर इंफिनिटिव होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तब उसका रूल इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3। मतलब V3 लगाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? V3 लगाने के लिए हमको बी फॉर्म यूज करनी होगी और वर्ब के बाद इंफिनिटिव के बाद से पहले इंफिनिटिव को V3 बनाना होगा, टू के बाद हमको बी लगाना होगा। सी द एग्जांपल, इट इज टाइम टू लर्न द वॉइस। इट हमारा आ गया, वर्ब इज नाउन, टाइम आ गया, इंफिनिटिव टू के साथ V1 और ऑब्जेक्ट हो गया द वॉइस। अब इसका रूल देखिए, एज फिर वर्ब आ गया, नाउन इज, इतना पोर्शन हमारा सेम तरीके से आता है। फिर हमको नाउन लेने के लिए, ऑब्जेक्ट लेने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। यहाँ पे प्रीपोजिशन हम अकॉर्डिंग द नाउन लगाएंगे, अकॉर्डिंग द वर्ब लगाएंगे। उसके लिए भी आपको फ्रेजल वर्ब्स देखना होगा। फ्रेजल वर्ब्स देखने के लिए आपको मेरे लिंक पे जाना होगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ फ्रेजल वर्ब का ऑडियो वीडियो दिया गया है। तो प्रीपोजिशन वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा, फॉर द वॉइस, फिर आगे हमारा ऑब्जेक्ट, देन टू बी लगेगा, फिर V3। ये हमारा टू बी लास्ट में आकर V3 बन जाएगा। टू लर्न मतलब टू बी लर्न हो जाएगा। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एज इज टाइम फॉर टू लर्न द एक्सरसाइज। एज इज टाइम फॉर द एक्सरसाइज टू बी लर्न। समझ गए? मीन्स इस तरीके के सेंटेंस को हमको ये रूल लर्न करना होगा। ये रूल लर्न करने के लिए ही हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा काइंड आता है इम्परेटिव। असर्टिव हमने सीखा, इंट्रोगेटिव हमने वर्बली अपने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया। नाउ वी विल सी इम्परेटिव्स। इम्परेटिव जिस तरीके से हमने सेंटेंस में देखा इम्परेटिव क्या होता है, या नरेशन में देखा इम्परेटिव किस तरीके से 4-5 तरीके के होते हैं, उसी तरीके से हमको इसमें इम्परेटिव हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा हेल्प आपको नरेशन से मिलेगी। नरेशन का वीडियो आप इम्परेटिव फॉर्म का देखिएगा, तब आपको ये इम्परेटिव समझ में आ जाएगा। क्योंकि नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच में हमारा एक्टिव वाला सेंटेंस होता है, वो हमारा जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनता है, वही हमारा पैसिव में आ जाता है। समझ गए? मीन्स डायरेक्ट सेंटेंस जो हमारा होगा वो एक्टिव में होगा, एक्टिव की तरह होगा, और पैसिव वाला सेंटेंस जब हम बनाएंगे वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच की तरह बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी रूल्स हैं, उसको देखिए। When in the sentences there will be feelings of command and order, then the sentences will be made with let. अगर सेंटेंस में कमांड होगा, ऑर्डर होगा, तब सेंटेंस को हम लेट से बनाएंगे। हाँ, याद रखिएगा, कमांड हमको सेंस देखना होगा सेंटेंस का कि व्हाट इज हैविंग, कमांड है या उसमें ऑर्डर है। जैसे सेंटेंस देखिए, रूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 डू दिस वर्क। अब इस डू दिस वर्क में ऑर्डर भी आ जाता है और कमांड भी आ जाता है। हमने इसको बनाया है लेट। लेट हमारा यहाँ रूल है लेट, फिर दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ दिस वर्क आ गया, V हमने लगा दिया, V1 हमारा डू है, तो डू का हमने V3 लगा दिया। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। स्टैंड अप, हाँ, कमांड है स्टैंड अप, तो कैसे बनाएंगे? लेट,
अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं. लेट हिम टू बी स्टैंड, स्टूड अप. V3 स्टैंड का स्टूड अप. लेट हिम टू बी स्टूड अप. तो इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना होगा. नेक्स्ट देखिए रूल. अगर हमारे एडवाइस एक्टिव में अगर हमारे एक्टिव फॉर्म में ये रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V3, तब उसको बनाने के लिए हमको देखना होगा कि किस तरीके से हमारा नॉर्मल सेंटेंस है. मीन्स इम्परेटिव अगर हमारा सिंपल होगा उसमें एडवाइस होगी. सही लिखा होता है. अगर हमारे सेंटेंस में एडवाइस होती है कि भी किसी भी सेंटेंस में अगर एडवाइस हुई तो उसका रूल फॉलो करने के लिए हमको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 यूज करना होगा. हेल्प द पुअर, इसमें एडवाइस दी गई है सर्व योर कंट्री. डू समथिंग फॉर योर कंट्री. मतलब अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस होगी तो उसको हम शुड लगा के बनाएंगे. यू शुड प्लस V3. देखिए एग्जाम्पल. द पुअर, पहले सब्जेक्ट आ गया द पुअर, शुड आ गया, या बी आ गया, हेल्प हमारा V3 था तो उसको हमने V3 चेंज कर दिया. सर्व द कंट्री, तो द कंट्री शुड बी सर्व्ड. सिंपल. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेंटेंसेस विद लेट. अब ऊपर हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस में लेट नहीं होगा, एडवाइस होगी या ऑर्डर होगा तब हम लेट बनाएंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिव में ही लेट हो. पैसिव में भी लेट हो सकता है, एक्टिव में भी लेट हो सकता है. लेकिन हमको समझना होगा कि उस सेंटेंस में V3 है वो एक्टिव है या पैसिव. तो जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं उनका रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस एजेंट. एजेंट भी जरूरी नहीं है लगाई या नहीं लगाई. एग्जाम्पल देखिए. लेट हमारा आ गया, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, बी अब डू द वर्ब, डू हमारी वर्ब फॉर्म और ये हमारा नाउन आ गया. इसको हमने बनाया लेट, फिर द वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, बी फिर V3 हो गया डू का, एंड बाय हिम ये हमारा एजेंट हो गया सब्जेक्ट. इस तरीके के सेंटेंस को, एडवाइस या सजेशन वाले सेंटेंस को या लेट वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं. अपने आप से हम उसमें इट इज सजेस्टेड जोड़ देंगे. इट इज सजेस्टेड अपने आप से ही जोड़ दिया जाएगा. इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड, ये भी हम अपने आप से जोड़ेंगे क्योंकि इसमें एडवाइस नजर आ रही है. डू द वर्क, यहाँ डू द वर्क होगा. सजेस्टेड V3 में ही सजेस्टेड आ गया. तो हम अगर एक्टिव के सेंटेंस में V3 नहीं लगाते हैं तब भी हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. नाउ हियर आर मोर रूल्स ऑफ imperative. So see, if the sentence will have kindly and requested in the starting of the active sentence, kindly और request होगा स्टार्टिंग में, तब हम क्या लिखते हैं? You are requested प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 यहाँ आया फर्स्ट टाइम बिकॉज रिक्वेस्टेड ऑलरेडी V3 यूज हो चुका है. सो सी द एग्जाम्पल. काइंडली डू द वर्क. सी द पैसिव. यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द वर्क. हम काइंडली और रिक्वेस्ट जैसे वर्ड्स को फिर रिमूव कर देते हैं व्हेन वी विल देयर टू मेक द सेंटेंस इनटू पैसिव, क्योंकि रिक्वेस्टेड में ही काइंडली आ गया है. See the next rule. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू. मीन्स अगर एक्टिव में ये रूल होगा, ये इस तरीके का सेंटेंस होगा, तब हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 प्लस 2 इंफिनिटिव लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. आई कॉट, आई सब्जेक्ट आ गया, वर्ब कॉट हो गया, नाउन हिम हो गया, इंफिनिटिव विदाउट टू हमारा यहाँ पर इंफिनिटिव आया. इसको हमने कैसे बनाया? सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया? ही, वर्ब हमारा आ गया वॉज, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, V2 है. पास्ट टेंस में रूल क्या था? V2 जब होगा हमारे सेंटेंस में देन वी हैव टू यूज वॉज प्लस V3. तो हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज प्लस कॉट आएगा, वॉज प्लस V3. वॉज प्लस V3 मीन्स कॉट, कॉट के साथ में वॉज आ गया और प्लस V3 फिर टू टॉक. यहाँ पे टू इंफिनिटिव लगाना होगा. मीन्स यहाँ टॉक है हमारा टू टॉक. बाय मी अगेन, हियर आई यूज एजेंट ऑफ आर. सी द नेक्स्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट. जब सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट
किसी की तारीफ की जाएगी, किसी को एक नया शब्द दी जाएगा या किसी को किसी रैंक दी जाएगी, अगर इस तरीके के सेंटेंस होंगे तब हम ये रूल फॉलो करेंगे, वी सेलेक्टेड हिम मॉनिटर। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा सिलेक्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर हो गया। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही आ गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इनका ही हो गया, सेलेक्टेड आ गया या V2 इज हियर, सो was सेलेक्टेड हो जाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ, फिर हमने V3 लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट मॉनिटर यूज किया। बाय अस लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। See one more example. He elected him the chairman. So he was elected chairman. So it will be simply written after the verb forms. See the next, verb with two objects. जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तब उस रूल को फॉलो करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा, सिंपल रूल है। फिर जिस तरीके का टेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर V3 यूज करके सेकेंड ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। देन वी विल राइट द रेस्ट पार्ट। सी देयर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है तो हमको दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। जैसे आई गेव हिम मनी, या हिम भी हो गया, मनी भी, दो ऑब्जेक्ट हो गए। दो तरीके से सेंटेंस बना, ही वाज गिविंग मनी बाय मी। पहले हमारा ही आ गया, हिम को हमने ही सब्जेक्टिव केस बनाया, दूसरे सेंटेंस में मनी को हमने बनाया, मनी वाज गिवन हिम बाय मी। सेकेंड एग्जांपल भी देख सकते हैं, आई गेव यू अ पेन। अ पेन और यू दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आई गेव यू अ पेन वाज गिवन यू बाय मी, और यू आर गिवन अ पेन बाय। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लेकर बना सकते हैं सेंटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंटेंस बना सकते हैं। सो दैट्स इट, द एक्टिव पैसिव वॉइस इज कंप्लीटेड। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।